Let's see. Namaskar. I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So in today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without, just a sec, to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. So let's see what are we looking beyond weight management. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and can be corrected and balanced back to its natural state. So, who is this webinar for? For people who are tired of temporary solutions after doing tons of diet and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. So, weight management with Kumbhak, the right way, freedom from restrictive diet plans. So, what you'll get in today's webinar: what is fat? Why the body creates fat? A new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body to do the Shuddhi or the internal cleansing to bounce us back to a natural state of health. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about weight management or rehabilitation, rejuvenation of our body. Thank you so much for listening to me patiently. Now, I will just share with you how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे स्वामी जी का recorded video. After that, we will be inviting somebody live who would like to share his or her journey of Ameda weight management. Of course, we share the program details. Last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be joining us live. So quickly लिख डालिए आपके weight related issues जिससे आप परेशान हो रहे हैं, along with your name and number. Thank you so much. Namaste. Over to Anil ji to share the video. हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा। उपमा बनाया होगा ना आपने? तो ऐसा कीजिए कि कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो। नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम। क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने। क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं। और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश, हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला।
टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है। सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं। जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। ये पार्ट ही मिस कर गए। और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा। तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, 2 points that we are missing is pressure and temperature. लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 years ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल। व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया, जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम तीन में बात करते हैं, है ना? तीन में बात करते हैं ना, वात पित्त कफ, हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस तेजस वर्चस, हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन, हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना? ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा।
हेल्थ खराब हो गई, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, just for as an example, I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व। क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। वी वर नेवर इंटेलिजेंट। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट। उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें। अधि, अधि से शुरू। समाधि, you must have heard this word, samadhi. The second word is shuddhi, and the third word is vyadhi. ठीक है? सम अधि, शुभ अधि। शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधि अधि, व्यधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है।
Right. So Sanskrit, when you say Sanskrit words, please don't translate it into English. English में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा. तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि. उसको शुद्धि कहा जाता है. So when you apply the right kind of temperature and the right kind of pressure, water and rava becomes upama. That is called as shuddhi. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सोल्यूशन मिलेगा. देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना. इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का. अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का. राइट. सो व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि, व्हेन यू यूज समथिंग फॉर इनहैंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं. नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं. तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की. इफ योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटेरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज. हाँ, सिंपल. आगे चलते हैं. देन हु शुड बी एबल टू यूटिलाइज थिंग्स प्रॉपरली इन द बॉडी? एवरीबॉडी ना. हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? सपोज यू हैव गॉट इनटू अ डिजीज एपिसोड. आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि. राइट. सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए. रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए. ये प्रोग्राम चाहिए. रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए. और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि. उस समय भी आपको चाहिए. डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व. तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग. इट्स अ बिगर अम्ब्रेला एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट. इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं. If we are saying we have increased the risk of this human body or any kind of life, लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Right? So naturally there is a balance of many things, with material, pressure, temperature, which creates life. है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे. ऐसा है ना? If we deviate this balance, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, then we create risk. So have we polluted the environment? क्या environment pollute कर दिया हमने? So we have created risk on us. अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? So have we changed the composition, the resources of this environment? इसमें से पानी आप देखो आसपास में, just look around. How many places where you find ponds, rivers, lake, ताल, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है. जमीन के नीचे पानी कहां है? From 50 feet to 5,000 feet down. दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास वो नहीं है. हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको. कंडीशनड एनवायरमेंट में रहते हैं. So we have created risk by changing the environment और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरमेंट. एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया. द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया. सो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड.
भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है। ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे। विल, है ना, विल यूज एडिपोस or fat as an example. So fat also takes care of what you also call as cholesterol. Cholesterol जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं। Do you know cholesterol is an important part of your immune system. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा। तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है। और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा, यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी। जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा। तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है। गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे। दैट इज क्रिमिनल। So first of all, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol, yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप criminal activity कर रहे हो। Now, giving more example around it, थोड़ा और example दूं कि हम कैसे एक criminal activity कर रहे हैं human body को लेके। So how does your body mitigate infection? Infection को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? Many of you might have got into corona, yes or no? Or some kind of viral infection you must have got into, है ना? Viral infection तो हुआ होगा सबको। What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? व्हाट इज द वे ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी टू मिटिगेट इंफेक्शन? टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना। मगर आप नहीं बढ़ने देते ना, आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल। आप बढ़ने नहीं देंगे, आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन। आप नहीं बढ़ने देते ना। दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अपॉन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे।
कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे। सो हाउ विल दिस बॉडी मिटिगेट द रिस्क? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि भाई जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा। हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो। So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा। सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर, एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर। सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड। आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। अब देखो, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि वाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज। हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है। ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है। यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का, तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में। ठीक है, अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है। जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स। ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है। जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा? एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है। यानी इंफेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी। और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का,
ये दोनों बढ़ा दिया, अब इसको काम नहीं करने दे रहे, तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला है। ठीक है, आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो, ताकि कभी काम करने दे तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर का, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी, इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि, appropriate use of whatever you put in your body and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं। Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड। किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क। वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना? व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम। एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार नहीं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन। इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है, और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है, उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस?
व्हाट हैपन, सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो, यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना। घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ, एंजाइटी हैपन्स, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है। आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो। अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होके बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना, यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। if there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें। इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर अपनी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी is an indicator of your immunity, is an indicator of a larger scope. I am saying व्याधि क्षमत्व। ये अगर आप बढ़ाते हैं, if you increase व्याधि क्षमत्व, you will do श्लेष्म शुद्धि, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body. अब एक नया वर्ड बोल दिया, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, बिकॉज ऑफ होम्योस्टैसिस देयर इज एवरीथिंग इन बैलेंस इन योर बॉडी। तीन चीजों को होम्योस्टैसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है। केमिकल होम्योस्टैसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टैसिस एंड थर्मो होम्योस्टैसिस। तीन चीज बताया। देखिए ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल। कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। यही तीन चीजों का होम्योस्टैसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन वे टू चेक, देयर आर अदर वेज टू चेक। आई हैव टोल्ड यू ओनली वन वे। पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है, समझिए।
आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं। यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, you will see you will mitigate risk very easily, and the fat proportion, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। सो एज आई सेड, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट। यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। By just doing Kumbhak, you increase the thermoregulation factor और thermoregulative index of your body। शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। Anybody who does Kumbhak for a certain period of time till the व्याधिक क्षमत्व has increased cannot gain weight, can never gain weight। I was more than 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैन नॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed। आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। There is nothing called as blood pressure। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड। उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज? छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सोल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है।
तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब. So श्लेष्म शुद्धि, how we are going about doing श्लेष्म शुद्धि? By using कुंभक to increase what is called as तेजस एंड वर्चस. दो फैक्टर बताया. श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर. वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया as one part of it. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में. The first thing that will teach you is Trikagni Kumbhak Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhak, which is directed towards every organ of your body. तो ये ना, ये overall health program है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, heart को strong करेगा. It will build up confidence, boost up confidence, and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके blood pressure को regulate करने के factor को बढ़ाएगा. It will enhance the kidney capacity, kidney की capacity को वो increase करेगा. तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है. श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रो आउट करने का भी. डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिंग प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके. ठीक है ना. तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज it will also ensure that you become strong in your body. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज. सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस. ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको. नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट. आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ
एग्रेसिव एक्टिव, इवन एग्रेसिव एक्टिविटी, आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से, एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट, वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे, वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है, इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर, एंटी एजिंग भी होता है इससे, ठीक है। 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक। ये तीनों चीजें, त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हट कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है। कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता। बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है नॉट विथ कुंभक, करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना। तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है। विल टीच यू इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे। इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट, लाइक वेट रिडक्शन तो होगा। इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadik Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months for from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल टेक 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी other way through which you can do this? No, you can't do this through any other way. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधिक क्षमत्व। तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसी चीजें नहीं होती। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म, साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधिक क्षमत्व बढ़ाएंगे तो 1 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है। So this is a missing part that we must focus upon, and this program is a complete rehabilitation, recovery, rejuvenation program, है ना। तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन। किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, any kind of mental issues, stress, depression, bipolarity, schizophrenia, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the Vyadik Kshamatva, the mental issues actually collapse down, वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। So the core thing is Vyadik Kshamatva बढ़ा के what we are doing श्लेष्म शुद्धि, श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमेदा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए। लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज अमेदा। किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त, तो है ना, सबके लिए जरूरी है। बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए। टेक अ डिसीजन, इफ यू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योर लाइफ, यू विल सी यू कैन गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा। बाकी द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड। I'm so sorry. Now I would like to invite Alpana ma'am to share her journey of Ameda. Alpana ma'am, can you switch on your video, please? Yes. Thank you Yes, so ma'am. much, Good Alpana evening. ma'am, for joining us Good today evening. evening. Yes, Good good evening. evening, ma'am.
मैंने ये जर्नी तो आपके साथ ज्वाइन की है, बट आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी बिकॉज मेरे को तो पहले पता नहीं था कुंभक क्या होता है. जब से मैंने ज्वाइन किया है, आई फील लॉट ऑफ एनर्जी इन मी. अर्लियर आई हैव always joint pains problem, but I am now very happy. ये जो आपका ये वाला कोर्स किया है, मैंने अमेडा 21 भी किया था यूएस से. तो उसके बाद मेरे को इतना अच्छा ये कोर्स लगा कि मैंने ये दोबारा आपसे ज्वाइन किया है कोर्स. इससे मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है, रादर मेरे को मोटिवेशन मिलती है. सब बहुत ही अच्छा है और मेंटर्स इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प करते हैं. हेलो. Yes, ma'am, we can hear you. हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे को अपने आप में चेंजेस लगते हैं. मेरे को पहले डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, सभी मेरे को बॉडी एक रहता था. चिकनगुनिया के बाद मेरे को 1 साल हो गया आपका ये कोर्स ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट. तो मैं आपके जब भी कोर्स निकलते हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज निकलते हैं, मेरे यही होता है कि मैं उसको ज्वाइन कर लूं. मैं किसी तरह की रेगुलरिटी में बनी रहती हूँ उसी में. तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है अपने आप को रेजोनेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हमें कैसे लाइफ जीनी है. सब वो मतलब मेंटर्स इतने अच्छे से हेल्प करते हैं कि मतलब नहीं भी करना होगा तब भी आदमी करता है. थैंक्स टू रजना मैम. मतलब इतना ज्यादा पेन लेती हैं वो, तो मैं बता ही नहीं सकती कि मतलब जितनी बार भी सब पूछते हैं, सब बताती हैं, एक्सप्लेन एक एक चीज करती हैं. फोन पे भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे तो बताती हैं. तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. Thank you so much, Alpana ma'am, for sharing your journey of Ameda. I would like to now invite Sujata Chakravarti ma'am to please share her journey of Ashtang of Ameda. Good evening, ma'am. Namaskar. Namaskar. And let me share. It is just about 10 days. 27th April को हमारा batch शुरू हुआ था, and within these 10 days, I can notice so many changes in myself. कि ये पहले मालूम ही नहीं था कि बैठे बैठे कुंभक करने से इंसान पूरा पसीना पसीना हो सकता है. And उसके बाद I do not feel weak. I feel rather rejuvenated. And within these 10 days, I've also lost more than 1 kilo, which is something fantastic for me because I was on a plateau. Weight reduction नहीं हो पा रहा था. And mentors के बताने से, जैसे रंजना मैडम है सिखाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं. एंड मोटिवेशन टोटली रहता है. कभी हमको लगता है कि नहीं कर पा रहे आगे, आज कुंभक हमारा हमसे नहीं हुआ, तो शी टेल्स अस डजंट मैटर, 2 भाग में कर लीजिए, सुबह थोड़ा सा कीजिए, शाम को थोड़ा सा कीजिए, एंड वी कैन डू दिस. बाकी जो मैंने देखा था 2-3, मैं वेट रिडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को फेसबुक पर और जहां जहां पे है एडवर्टाइजमेंट आते मैं देख रही थी. बट आई वाज नॉट, मेरे मन से नहीं बोल रहा था कि मैं वहां वो ज्वाइन करूं, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस दे वर शोइंग, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइजेस. और देख के लगता है कि जिसको अगर नी पेन होगा, ऑलरेडी अगर वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है किसी का, तो वो उछल कूद तो नहीं कर सकता, और वो क्रैश डाइट्स करेगा तो वो क्रैश डाइट्स का इफेक्ट पड़ेगा ही. वी ऑल नो दैट. But in this program, everything is so balanced out. There are no crash diets. There are no intense exercises. Rather, they take you in a way which adapts to your body and the system very well. So I would recommend everyone to go through this, and this is something fantastic. Believe me. Thank you. Thank you so much, Sujata ma'am, for sharing your journey of Ameda. So I'm sure now the participants are eagerly waiting to know the program details. Yes or no? कितने लोग program details जानना चाहते हैं? There I can see a few hands go up. Thank you so much. Give me 2 minutes. I will share the screen. Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. It's a guided program conducted online on Zoom app by trained Kumbhak mentors. Mind you, they are trained specifically to
to take the classes online. So ये कोई योगा ट्रेनर्स नहीं है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कुंभक मेंटर्स कहलाते हैं, और हमारे टीम के तरफ से वो लोग क्लास लेते हैं. So let's come to the program overview. 6-week program, 18 live classes, 3 classes every week. Pran Shakti diagnosis for root cause determination, 1 customization class. So classes for start date for Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa, 7 a.m., 11th May 2023, Thursday. So class time and days, 7 a.m. class days, 11th May, Thursday, and Saturday, 13th May. Next week onwards, it's Monday, Wednesday, and Friday. So what is the class experience like? Live session, mentors watch participants, written instructions in English and Hindi, session recordings. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. This is not for those who are not ready to work on their body. Not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. Not for those who are impatient. Not for those who are looking for a free treatment. So let's come to the special webinar pricing. So program fee for Ameda, 9,500. But everybody loves discounts. So we are giving a special webinar pricing of 5,500. So how to enroll? Pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, submit your details to access coach dashboard, join class WhatsApp group. So what do you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination, 3 classes per week, 60 to 70 minutes duration, class recordings, access for 6 months, separate videos of all the kriyas, written instructions, daily support in the class groups, customization of kriyas as per the PSD, 30 days of extra support after the program is over. So these are the payment methods. You have the QR code, the bank details, so you can transfer in whichever way you want. So our support team, Rachna Shrimal Bothra, that's me, Shalini Bhagwat, Ranjana Swain, Himanshu Reddy, our backend guy, Anil Chauhan, Neha Upadhyay. So this is our program details for Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. Sherry sir, you can write down your name and number. So evening batch will be starting next week, so we can, or week after next, so we can always get in touch with you and keep you updated. So now we'll take up the questions one by one. Let me see if Swamiji has joined in. Anybody who wants the evening classes, please write down your name, number, and evening classes beside it. We'll make a note and our enrollment expert will get back to you. So Swamiji is yet to join. Please write down your questions, the problems that you are facing for your overweight. So you can write down. Sunil sir, please note down your number as well, so that our enrollment expert Neha can make a list of the people who are interested in evening classes. Tanima ma'am, please write down your name and number.
So let me just check. So we are having a couple of people who want to join for the evening class. Neha, please make a note of the people who want the evening classes so that we can update them as and when we start. Okay, there is one question. Just a sec. Can people with low blood sugar do this program? So we'll be answering all your questions shortly. Let me see if Swamiji has joined in. Not as yet. So he'll just take 2 minutes and he'll be joining in soon. So sab log apna questions likh daliye so that I can take them up one by one. For certain personal queries, just 1 minute. Somebody is writing about Nidhi Khandelwal, ma'am. For certain personal queries, when will that be possible? So can you give your number so that Neha will contact you? Nidhi Khandelwal, ma'am, please note down your number. Neha, please make a note of her number so that you can get in touch with her. High BP individuals, yes, high BP individuals can also join. Yes, Santara ma'am, you're trying to ask something. So Swamiji will be joining in another 2 minutes. So thanks for your cooperation and the patience. So you all can write down your questions in the chat box. I'll be taking them up one by one. Nidhi Khandelwal ma'am, we'll discuss everything. What will be the timings for evening class? Mostly we start at 7 o'clock. Considering the fact that people who are office goers for the convenience of all and the housewives also. So by 7 o'clock, everybody is done with their work. Okay, let me see. Arpita ma'am, the evening class timings is mostly 7 o'clock, but you can still leave your number. If we see that there are many people for some other timing, we can decide definitely. Will this be helpful for perimenopausal issues? Definitely, ma'am, it's going to be helpful for perimenopausal issues as well. Because you are working on your internal system. So now Swamiji has joined in.
So he will be taking up the question. Let me put him on spotlight. Thank you so much, Swamiji, for joining in. Namaste. So Arpita ma'am writes, can people with low blood sugar do this program? So when we are saying Sleshma Shuddhi, what does it mean? Fundamentally, what does it mean? Utilization of food. So Sleshma, in one of the ways, the pre-Sleshma part is your food. Your food becomes Sleshma and then it gets utilized in your body. The process is called as metabolism. So if your metabolism is weak, what will happen? You'll not be able to transform the food into glucose. This is called as gluconeogenesis. So your gluconeogenesis will be low. And the moment you improve the metabolism, gluconeogenesis happens and everything starting from low blood glucose to tissue damage to recovery of the body to the immune response, they all become fine, right? So I have, what does she say? I have autoimmune haplotype. What is autoimmune? Yes, autoimmune is very important. What is autoimmune? So can you correct your autoimmune disorder? Yes, 100% you can correct your autoimmune disorder. First of all, you will have to understand what is autoimmune disorder and how it can be corrected. So there is a immune response of your body. आपके शरीर का एक immune response होता है ना, जैसे ही आप कुछ खतरा, कोई risk आपके बॉडी में आता है, आपका बॉडी का immunity respond करता है. ठीक है ना, इस बात को समझिए. दो तरीके के response होते हैं आपके बॉडी में, immune response and metabolic response. So when you eat food, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो इंसुलिन निकलना चाहिए ना. आप फूड खाते हैं तो थायरॉक्सिन निकलना चाहिए ना. इंसुलिन, थायरॉक्सिन, नमालिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, ऐसा कुछ हार्मोन्स होते हैं. इसका बॉडी जो है वो निकाल के भोजन को ठीक से पचा के और उसके बाद में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करती है और 7 तरीके के टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स. व्हेन यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जो आपका भोजन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, जो आपका फूड नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में, अपने शरीर में डालेंगे तो क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स चालू होगा ना. रिस्क आ गया, कोई गलत चीज चली गई तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ठीक नहीं होगा. इम्यून का रिस्पॉन्स विल हैव टू हैपन राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. बचपन से जैसे ही पैदा हुए, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के नाम पे, हाउ मेनी केमिकल्स यू स्टार्टेड पुटिंग इन योर बॉडी? इज दैट योर फूड? No, the moment you put something in your body which is not your food, आपका भोजन अगर वो नहीं है तो रिस्क आएगा ना बॉडी के लिए. आपने दर्द की दवाई खाई है? What are those medicine? They are prostaglandin inhibitor. Prostaglandin एक चीज आपके शरीर में बनती है जो आपके शरीर में कुछ चीजें ट्रिगर करती है. क्या? रीजनरेशन ट्रिगर करती है. फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करती है, कंसेप्शन कंट्रोल करती है, डिलीवरी कंट्रोल करती है. तो कंसेप्शन का इश्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू बढ़ रहा है. 10 में से 6 सी सेक्शन होता है, ज्यादा होता है, मैं तो कम बता रहा हूं. ठीक है, तो आप दर्द की दवाई खाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करेंगे तो आपका ये सारा प्रॉब्लम में आ जाएगा. रीजनरेशन फैक्टर प्रॉब्लम में आ जाएगा. यही नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम में आ जाएगा. इनहिबिट करेंगे जब शरीर के अंदर तो आपके शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉब्लम में आएगा. इम्यून रिस्पॉन्स कई तरीके से होता है, उसमें से एक तरीका होता है आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल कितना है, टी सेल कितना है, एक ऐसा कहते हैं. दूसरा क्या होता है, इसे कहते हैं एड्रिनल रिस्पॉन्स. आपके किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, खतरे में वो एक्टिव हो जाता. तो हमने खतरा बचपन से पैदा किया तो वो एक्टिव हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर एक्टिव हो रहा है, फिर जा रहा है. आपके सारे बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्स के हार्मोन्स और सेल्स है ना, वो सब इम्बैलेंस हो गए. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. खतरा आएगा तो शरीर खतरे को खत्म करना चाहता है, मगर कॉन्टिन्यूस खतरा आएगा तो अपने आप ही को खत्म करना चाहेगा. Isn't it? If you get tortured continuously, what you will say? Okay, I want to die. Yes or no? So when you are torturing this body continuously, at a certain point of time, it says, okay, this
पर्सन इज नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली, ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, चलो इसको खत्म करते हैं, विल सी इट नेक्स्ट टाइम, अगली बार देखेंगे, राइट? और बताएं आपको, और थोड़ा सा बता देते हैं, यू नो हाउ डज योर बॉडी काउंटर इन्फेक्शन? इन्फेक्शन से कैसे लड़ता है आपका शरीर? सबसे पहला क्या, सबसे व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस? सो एवरीबडी मस्ट हैव गॉट इनटू सम काइंड ऑफ फ्लू तो हुआ होगा ना, कोरोना और समथिंग लाइक दैट, वायरल तो हुआ होगा ना सबको कभी ना कभी। व्हाट हैपेंस, क्या होता? फीवर आता है ना बॉडी को, बॉडी गर्म कर लेती है अपने आप को, 5 डिग्री का फीवर आएगा, कोई भी वायरस मर जाएगा, बट आप नहीं आने देंगे ना। You will not allow the body to raise its temperature. What will you eat? What will you take? Dolo, paracetamol, crocin, कुछ खा लोगे ना? वो क्या है? Prostaglandin inhibitor, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug। ऐसे नाम रखने से ना आज तक कोई ठीक हुआ नहीं। तो अब बताओ, आपने तो उसको रोक दिया काम करने से, तो कैसे ठीक करेगा बॉडी? उल्टी आएगा, यू नो, उल्टी आएगा, आप उल्टी बंद कर देते हैं ना, दस्त आएगा, आप दस्त बंद कर दोगे ना, और इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो बाय इनहिबिटिंग, बाय टॉर्चरिंग द बॉडी, इफ यू कॉल दैट अ ट्रीटमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू विल गेट इनटू क्रॉनिक डिजीज। जो आपकी हालत है वो इसी वजह से है। तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, इम्यून रिस्पॉन्स खराब है। अब इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना, ये बताइए। तो अब मैं आपको आसानी से बता रहा हूं और समझने के, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 क्लियरली, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पीपल। द प्रॉब्लम इज यू आर एजुकेटेड इन अ सर्टन थिंग। तो आप समझदार हैं, आपके पूर्वज समझदार थे, तो आप समझिए इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब बचाना ना अपने आप को। सो हाउ वुड यू डू दैट? आप कैसे करेंगे? सपोज समबडी इज हिटिंग यू हार्ड, कोई आपको बहुत तेजी से मुक्का मार रहा है, तो आप अपने आप को कैसे बचाते हैं? टेल मी, सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को? यू होल्ड योर ब्रेथ, टेंस योर बॉडी टाइट, सांस रोक के शरीर टाइट कर लेते हैं ताकि कम लगे, जो चोट नहीं लगे आपको। ये करते हैं कि नहीं करते? बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड यू आर होल्डिंग दैट रॉड, जो खंबा है उसको पकड़ के रखा है, बस हिलने लग जाए तो यू होल्ड इट वेरी टाइट, यू विल होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक के और टाइट पकड़ लेंगे ना अपने को बचाने के लिए। अगर आप खड़े हैं, आपको कोई गिराने की कोशिश करे, हाउ वुड यू ट्राई टू स्टे एट दैट सेम पोजिशन? उसी जगह पे कैसे अड़े कैसे रहेंगे? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड नॉट ट्राई टू फॉल डाउन। कोशिश करके देखो, ऐसे ही करोगे ना, सांस रोक के आप ये एक ही जगह अड़े रहने की कोशिश, यू विल नॉट ट्राई टू, मतलब जो फॉलिंग डाउन टेंडेंसी है ना, उसको रोकने की कोशिश करें। तीनों जगह पे क्या कॉमन है जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? तीनों जगह पे क्या कॉमन है? सांस को रोकना। तो आपकी प्रोटेक्टिंग एबिलिटी यानी कि टॉलरेंस, आपके शरीर का टॉलरेंस ही आपकी इम्यूनिटी है। और ये टॉलरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? और भी एग्जांपल, आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। कोई वेट उठाएं जो कि भारी है, उसको टॉलरेट कैसे करते हैं आप? सांस रोक के उठाते हैं, खींचते कैसे किसी चीज को? टॉलरेंस आ जाते हैं, ऐसे पकड़ के जरा करिए ना, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, है ना, गूगल पढ़ के ही थोड़ी समझ में आता है। आप समझदार वैसे ही हैं। क्लास्प योर फिंगर्स एंड ट्राई टू पुल, खींचिए, जोर से खींचिए, सी होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं। फॉर पुशिंग यू होल्ड योर ब्रेथ, पुश करने के लिए सांस रोकते हैं। जंप करते हैं तो सांस रुकती है। व्हेन यू फॉल डाउन ऑटोमेटिकली ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुक जाती है। Isn't it? आपने छींक मारी है, स्नीजिंग किया है कभी? हैव यू स्नीज्ड? छींक मारा? क्या होता है छींक मारने से पहले? सांस रुकता है। उल्टी किया है कभी? उल्टी करने से पहले सांस रुकता है। I can tell you hundreds of examples how your body handles itself. तो अगर मैं कहूं कि टॉलरेंस ही इम्यूनिटी है, तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस का मतलब क्या है? सांस रोकने की क्षमता। योर एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ इज योर टॉलरेंस, एंड दैट टॉलरेंस इज योर इम्यूनिटी। क्या आप इम्यूनिटी को ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि मेडिसिन खाके तो ये हुआ है, तो दूसरी मेडिसिन खा के और हो जाएगा, ठीक तो होगा नहीं। इफ यू
are dreaming that some medicine will come in future, जिससे मेरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, तो बढ़ने ही वाला है। क्योंकि मुझे बता दीजिए कौन सी बीमारी कम हो रही है दुनिया में? इतना ज्ञान डायबिटीज का है, डायबिटीज कम हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ज्यादा हो रहा है? इतना ज्ञान थायराइड का है अगर, तो थायराइड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? इसका मतलब ज्ञान है ही नहीं। और गूगल में जाके टाइप करो डायबिटीज क्यों होती है, किसी को नहीं मालूम क्यों होती है, मगर ट्रीटमेंट सभी कर रहे हैं। आप बोलो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम। कहते हैं अल्टीमेटली वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। तो आप ट्रीटमेंट काहे का कर रहे हो जब आप जानते ही नहीं? तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज कम हो रहा है, बढ़ रहा है? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, बढ़ रहा है। बच्चों को हो रहा है, 2 साल 3 साल के बच्चों को डायबिटीज और ये हार्ट का इश्यू आ रहा है। अच्छा ये बताइए थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हैव यू हर्ड अबाउट थायराइड? जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडमदर। अपनी दादी नानी याद है आपको? क्या थायराइड सुना था कभी? तो अगर किसी को मालूम ही है कि थायराइड क्या होता है, तो बढ़ क्यों रहा है? ठीक होना चाहिए। हम थायराइड प्रोग्राम करते हैं, वहां थायराइड ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, हाँ डायबिटीज ठीक हो जाती है, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो 2 चीजें मैंने फंडामेंटली आपको बताया। जब आप फूड खाते हैं तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है, जब आप गलत चीज डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स, बार बार गलत चीज डालेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स गलत खराब हो जाएगा। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये मेडिसिन से नहीं होता, ये फूड से नहीं होता। भोजन खा के मैराथन दौड़ते हैं क्या? ये आपकी मूलभूत शक्तियों को नहीं बढ़ाता। अच्छा फूड खाना अच्छी बात है, मगर क्या अवॉइड कर सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस, ये सब चीजें अवॉइड आप नहीं कर पाएंगे। एनवायरमेंट खराब हो गया, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। दवाइयों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट पुश करेगी, नहीं भाई वैक्सीन लगाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे कहीं। घर वाले बोलेंगे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वही कहते हैं ना, और तो कोई ऑल्टरनेटिव छोड़ा नहीं है आजकल। तो आपको सोचना पड़ेगा अभी कौन बचाएगा आपको, बताइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता दिया, ठीक तो करेंगे नहीं, तो दवाई इधर उधर घुमाते फिराते आपकी हालत खराब से खराब ही होने वाली है। अदरवाइज लुक अराउंड, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो काफी समय तक ऐसी प्रॉब्लम में रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई कभी? तो कैसे ठीक करेंगे? कुंभक से ठीक करेंगे। ये आप करिए, आप बचेंगे। सबसे पहले आपकी शरीर की शक्तियां वापस आएंगी, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस? ओ मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं या काम कर पा रही हूं, मुझे काम करने में आसानी हो रही है, मेरा भोजन जो है आराम से पच रहा है, मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग पावरफुल, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना पीरियड में हमने लोगों को कुंभक कराया, उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, और वैसे भी वायरस के लिए कोई दवाई होती नहीं है। तो ये करेंगे, ये एक ऐसी चीज है जो अर्जेंटली जरूरी है सभी के लिए। अब देखो, आप एक बीमारी नाम दे दिया, आप तो किसी आइडिया पे जा रहे हो ना, लेकिन जैसे ही आप अच्छा फील करते हो, आपकी बॉडी ठीक हो जाती है, एनर्जी अच्छी हो जाती है, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये तो जरूरी है, कंपल्सरी होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anju ma'am writes, may I know the difference between this program and Ashtang Chikitsa? Every program is addressed at a particular functionality of this body. शरीर की फंक्शनैलिटी को एड्रेस, जैसे हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, श्लेष्म शुद्धि, है ना? हमने इसका नाम क्या, श्लेष्म। तो ये किस तरफ में, ये आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ की तरफ में ये प्रोग्राम डिजाइंड है, और कस्टमाइज हो जाएगा जब आप प्रोग्राम में आएंगे। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने बोलेंगे अपने साथ में, फिर हमको और स्पेसिफिक बन जाएगा, कस्टमाइज कर। तो श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा, वो क्या है, अष्टांग चिकित्सा। नाउ दैट इज डिजाइन टूवर्ड्स वेरियस टिश्यूज इन योर बॉडी। आपके शरीर में कितने टिश्यूज हैं, उस तरफ में कैसे वो ठीक होंगे। तो वो प्रोग्राम जो डिजाइंड है ना, वो फंडामेंटली एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, जो कि बहुत चीजों पे काम करता है, मगर मेजरली किस पे काम करेगा, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर।
आप नाम से ही देखेंगे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ. सो श्लेष्म शुद्धि इज फंडामेंटली टुवर्ड्स मेटाबॉलिज्म. इस फंडामेंट, इसको हम ऐसे भी कहते हैं रिहैबिलिटेशन. क्योंकि देखो आप बीमार हो गए, सर्जरी हो गई आपकी, उसके बाद में क्या चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी. तो मेटाबॉलिज्म ठीक कैसा होगा, श्लेष्म शुद्धि. तो हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है, रिहैबिलिटेशन. या कोई वेट लूज करना चाहते हैं, किसी को उसके फैट उसकी बॉडी में ज्यादा है ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, इस तरीके की चीजें, मतलब फैट का कंजम्पशन बॉडी में ठीक से नहीं हो पा रहा, तो वेट लॉस के लिए काम आएगा रिहैबिलिटेशन. वेट लॉस शरीर में, अच्छा ये शरीर के स्ट्रक्चर को भी डिजाइन करने के लिए काम है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे करला कटाई कहते हैं. इसमें थोड़ा वेट यूज करते हैं ताकि आपके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो जाए, आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, आप फटाफट खड़े होकर काम करने लायक बन जाए. इसीलिए रिहैबिलिटेशन बोल रहे हैं, है ना. कुछ लोग कॉस्मेटिक तरीके से भी कर सकते हैं. वेट ज्यादा है, अब वेस्ट में वेट ज्यादा है, वेस्ट कम करना है ना. कुछ लोग कॉस्मेटिक तरीके के लिए भी कर सकते हैं कि भाई मेरे बॉडी में एक शेप चाहिए. यंग लड़कियां, यंग लड़के एक शेप लाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि श्लेष्म शुद्धि की वजह से एक तो रीजनरेशन और रीजनरेशन को कंट्रोल करना. बट वो क्या है, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, है ना. तो वो उस तरफ में हमने उस प्रोग्राम को रखा हुआ. ये बेसिक ये फर्क है. और अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए. और भी बहुत प्रोग्राम है हमारे पास में, डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, कैंसर का प्रोग्राम है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के लिए प्रोग्राम है, हमारे लिए अस्थमा एलर्जी के लिए अलग प्रोग्राम है, गर्भधारण के लिए अलग प्रोग्राम, गर्भाधान, फिर प्रेग्नेंट लेडी के लिए अष्टांग गर्भ चिकित्सा रहस्य करके एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है जो जेनेटिक्स को ही बदल देता है. तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना तो हम आपको डायरेक्ट भी करेंगे. Okay. The next question is from Arpita ma'am. I have autoimmune hypoglycemia, low blood sugar. ये दे दिया, जवाब दे दिया इसका. नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन. ठीक. Okay. Sarita Gogia ma'am, you have your hand raised. Can you please ask your question? Please unmute yourself. Sarita Gogia ma'am. I have one question. बोलिए. You can ask. Go ahead. Whether it is helpful in Sjogren syndrome? What syndrome? Sjogren. What is that? You'll have to describe a little, क्योंकि ये नामकरण संस्कार इतना किया हुआ है ना. ये एक सिंड्रोम ऐसा है जिसमें जो हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उसके सिक्रीशंस थोड़े कम हो जाते हैं. अच्छा, मैं आपको अब बता देता हूँ. हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ. बस इतना ही काफी है. हाँ जी. So first of all, when there is a word called syndrome attached with anything, Yes. syndrome कहीं से भी अगर अटैच ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, पहली बात, सिंड्रोम ठीक नहीं होता. तो गड़बड़ी ये है कि दे आर डिस्क्राइबिंग. एलोपैथी का मतलब होता है केमिकल मेडिसिन. सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, दे हैव डाइजेस्टेड इट. सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट है. सेकेंड थिंग इज डायग्नोसिस इज नॉट पार्ट ऑफ एलोपैथी, वो भी उन्होंने हजम किया हुआ है अपने अंदर. थर्ड थिंग इज दे आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एंड वी आर जस्ट लिसनिंग टू देम. तो उन्होंने तो कह दिया सिंड्रोम, और फिर डॉक्टर जैसे ही वो सिंड्रोम पढ़ेगा कहे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ऐसे ही मिली है मेडिकल कॉलेज में. अब उसे मालूम नहीं है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो उसका कोई रीजन ही नहीं है. आप पूछना चाहेंगे तो क्या पता चलेगा, नहीं जी किसी को नहीं मालूम क्या होता, क्यों होता है. तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. हाँ, अभी जैसे मैंने कुछ चीज बताई थी, बहुत कोरिलेट करके आपको बताऊंगा. तो सपोज कीजिए सिक्रीशन, एक सिक्रीशन उठाते हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और देखते हैं क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं. तो एक सिक्रीशन उठाते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बॉडी, इफ यू कैन इंस्टिगेट वन सिक्रीशन, इट मींस दैट यू आर इंस्टिगेटिंग अदर सिक्रीशन ऑल्सो. विदाउट अदर्स दिस कैन नॉट हैपन, है ना. ये हाइपोथेसिस से लेके इसको इस तरीके से समझ के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे. तो कुंभक करने के बाद में, एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बाय इटसेल्फ.
हाँ, अभी सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, एक एक करके आंसर करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन डाल दीजिए, देन विल कम टू दोस क्वेश्चन वन बाय वन। अब आप कुंभक अपने आप करने की कोशिश। कुंभक का मतलब, कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। पहली बात, कुंभक आयुर्वेद का वो पार्ट है जो कि खो गया, जो कि लॉस्ट इन टाइम है ना। बिकॉज ऑफ माई गुरुज ग्रेस आई एम अगेन रिवाइविंग इट, उसको मैं दोबारा रिवाइव कर रहा हूं। अच्छा, कुंभक अगर आयुर्वेद में देखें तो कहते हैं कि वात पित्त कफ, दे कैन एक्चुअली पिन पॉइंट कि आपके बॉडी में वात पित्त कफ में क्या प्रॉब्लम है। मगर वात पित्त कफ को ठीक करने का जो तरीका है ना, वो कुंभक सबसे पावरफुल तरीका। इसके अलावा सबसे वीक तरीका क्या है? मेडिसिन, जड़ी बूटियां सबसे वीक तरीका। अब वही बच गया, 2% ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जड़ी बूटियां, और वो बचा हुआ है हमारे पास में। द मेजर पार्ट ऑफ आयुर्वेद हैज बीन लॉस्ट। तो इसको आकाश तत्व कहते हैं, कुंभक को आकाश तत्व या इकोसिस्टमिक प्रेशर। जैसे कि बारिश होती है ना, बारिश किस वजह से होती है? एक इकोसिस्टम में प्रेशर वेरिएशन होगा तो लो प्रेशर जोन बनेगा, बादल हाई प्रेशर जोन से आएंगे और बारिश होगी। समझ में आया? तो आप ये इकोसिस्टमिक प्रेशर को देख नहीं पाते, मगर इसके बगैर काम नहीं चलता। आपके शरीर में भी ऐसा ही काम होता है। देयर इज एन इकोसिस्टमिक प्रेशर विच कंट्रोल्स मूवमेंट, जिसे हम वात कहते हैं। तो कोई सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक और चीज है कि मूवमेंट नहीं हो रही है। तो वात दोष, इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वायु का दोष है, मूवमेंट नहीं हो रही है। अब नाउ वी कैन गो ऑन डिटेल कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, श्लेष्म ज्यादा हो गया है ना, या पित्त ज्यादा हो गया तो मूवमेंट, तो वो एक अलग टॉपिक है। अब आते हैं इस पे कि क्या मूवमेंट को इमीडिएटली आप ठीक कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है और आप भी ये करके देख सकते हैं। कुंभक का एक एस्पेक्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं ताकि एक्सपेरिमेंटली मैं आपको समझा सकूं कि आप करके भी देख सकते हैं। तो ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है, इकोसिस्टमिक प्रेशर भी कुंभक है लार्जर स्केल में, मगर आप जब सांस रोकते हैं तो भी कुंभक है वो। तो आप सांस रोकिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, थोड़ी देर रोकते जाइए, 10 मिनट तक करो। आप में से बहुत लोगों को पसीना आ जाएगा ना। पसीने को हम कैसे रिलेट करते हैं? जब आप कोई बॉडी ज्यादा मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा बॉडी मूव करेंगे तो पसीना आएगा। यहां तो आप बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, यहां पे आप बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, उसके बाद भी पसीना निकल रहा है। क्या किया हमने? अंदर जैसे ही हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप अपने किचन का सिंक ब्लॉक है तो कैसे खोलेंगे? थोड़ा प्रेशर डालते हैं ना। एक पाइप से जूस पी रहे हैं आप, खींचते हैं ना, एक प्रेशर बनाते हैं तो वो खींचता है ना। तो आप शरीर के अंदर जैसे ही प्रेशर क्रिएट करते हैं, लॉट ऑफ सिक्रेशन happens inside your body. That is why we get result which is impossible by allopathy. तो हमारे प्रोग्राम दुनिया का इकलौता प्रोग्राम है, दुनिया का इकलौता प्रोग्राम जहां AMH काउंट बढ़ जाता है। AMH काउंट जानते हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे कंसेप्शन होता है एक फीमेल में। उसके हमारे पास में लैब रिपोर्ट्स भरे पड़े हैं। हमारे पास में लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बॉडी में कई जगह पे रुकावट लगती थी, वो खुल गई। जॉइंट्स जो है वो क्या कहते हैं, अकड़े हुए थे, वो खुल गए। तो वो अपने एक्सपीरियंस से भी बताते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, लोग और क्या क्या बताते हैं। अभी किसी ने, कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये मेंटल डिजीज पे काम करेगा? क्या ये मेंटल डिजीज पे काम करेगा? तो पहली बात आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसके रिलेशनशिप है मेंटल डिजीज के साथ। फ्लो नहीं हो रहा बॉडी में, इसका रिलेशनशिप है। तो आपको पहले मेंटल डिजीज को डिफाइन करना होगा, आपको माइंड डिफाइन करना होगा। क्या आपको मालूम है माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं है? एलोपैथी को मालूम ही नहीं कि माइंड क्या होता है, और वो लोग मानते हैं कि दवाई से कोई भी मेंटल डिजीज ठीक नहीं होती। जब आपको मालूम ही नहीं माइंड का, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेशर आपके शरीर को कुछ करने के लिए कंपेल करे, जोर दे, वो आपका माइंड है। तो माइंड वो एक लय है, रिदम है, जो आपके शरीर को पुश करता है कुछ करने के। ये आपके शरीर का ही पार्ट है, शरीर का ही रिदम है। तो रिदम अगर स्थापित, रिदम का एक और मतलब होता है हार्मोनल फ्लो, एंजाइम का फ्लो, ब्लड का फ्लो, न्यूरो सेंसेशन का फ्लो। जो फ्लो है वही रिदम है। जब फ्लो ठीक नहीं होगा तो
ऐसे लोगों को माइंड का इश्यू रहता है, कुछ लोगों को टैग नहीं किया गया, कुछ लोगों को टैग कर दिया गया। जिसको भी फिजिकलिटी का इश्यू है उसको माइंड का इश्यू है ही है। केवल बात क्या है, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बोला या किसी डॉक्टर ने बोल दिया। तो अगर ये फ्लो ठीक करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और इसको करने के बहुत तरीके थे। पहले तो फीमेल्स बहुत काम करती थी ना, उस तरीके से डिजाइन करते, क्रोशिया बनाते थे, स्वेटर बुनना होता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते थे। वो रिदम डांस जो हो गया, क्लासिकल डांस, वो रिदम लाने के लिए होता। गांव में लेडीज कुछ भार उठा के, वेट उठा के कुछ दूर तक उनको चलना पड़ता था। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग कंट्रोल ओवर द रिदम ऑफ योर बॉडी। तो आप सोचते हैं किसी के आगे साइंस डाल दो तो वो साइंटिफिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी साइंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। भारतीयों की देन है साइंस। अभी वेस्टर्न लोगों ने टैग ले लिया अपने ऊपर, ले लिया कि हम जानते हैं साइंस। वो कुछ भी साइंस नहीं जानते, ठीक है, केवल टैग लगा के मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। किसी भी चीज के आगे साइंटिफिक लगा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्या हम ग्लैंडुलर फंक्शन को ठीक कर सकते हैं कुंभक से? हाँ जी, 100% ठीक कर सकते हैं। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि एक और चीज की जाती है दुनिया में, वो कहते हैं जब समझ नहीं आता कुछ भी तो कहते हैं जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। क्या कहते हैं? जेनेटिक है। तो मुझे एक बात बताइए, 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज था? रेयरली, ना के बराबर। तो यानी कि आपके 2 जनरेशन पहले ऐसी क्रॉनिक डिजीज नहीं थी और आपको है। तो क्या आप मार्स से आए, आप दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? तो जेनेटिक कैसे हुआ? जेनेटिक कैसे हुआ फिर ये? लेकिन आपके बच्चों को ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि यही आपके शरीर का इंप्रेशन आपके जेनेटिक्स में जा रहा है। तो इस वक्त में क्या हम जेनेटिक्स को ठीक कर सकते हैं? क्वेश्चन ये आता है, जेनेटिक्स को ठीक कर सकते हैं? एलोपैथी भी उस तरफ में काम कर रहा है, जेनेटिक्स को ठीक करने के, मगर स्टेम सेल थेरेपी की तरीके से काम कर रहा है। इससे मानव शरीर और खराब हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 10 साल, अगले 10 साल ऑब्जर्व कीजिए केवल, आप देखेंगे किस तरीके से बीमारियां बढ़ेंगी। तो स्टेम सेल थेरेपी से ह्यूमन जीनोम ऑलरेडी डिस्टॉर्ट हो चुका है और खराब हो जाएगा। कुंभक का मतलब क्या होता है, मैं दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर रहा हूं। कुंभक इज एन एपीजेनेटिक ट्रिगर ऑफ योर बॉडी। जेनेटिक्स को ठीक करने का ट्रिगर है आपके शरीर का। टाइम फैक्टर अलग अलग हो सकता है, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, ऐसा लग सकता, मगर और कोई तरीका नहीं है। कुंभक ही एपीजेनेटिक ट्रिगर है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह से उठ के रात तक। बल्कि सटल एरियाज में भी, जब आप सपने भी देख रहे हैं तब भी कुंभक कर रहे हैं, क्योंकि आप शरीर मूव ही नहीं कर सकते विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, कुछ भी आप उठा लीजिए, जहां आप शरीर को मूव करते हैं, यू डू इट बाय होल्डिंग ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो कुंभक ही आपके जीवन का डायनामिक्स है, उसको ठीक करना जरूरी है। विच एंशिएंट टेक्स्ट टीचर्स अबाउट कुंभक, ये मैं बोल देता हूं, एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है, बट कुंभक एज अ थेरेपी यू वोंट फाइंड। इवन इफ यू फाइंड इट, हो सकता है कि कोई ढूंढने पे कहीं पे कुछ मिल जाए, बट थेरेपी का मेंशन अभी तक मेरे उसमें नहीं, मैंने इसको नहीं देखा है। कुंभक योग कलाचार में आपको कुंभक वर्ड सुनने को मिलेगा, बिकॉज दे इन योग कलाचार ऑल्सो, इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, इट वॉज यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया गया था, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ योर बॉडी, है ना। तो फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं, ईदर टू गो टूवर्ड्स हेल्थ, लाइफ, और मूव अवे फ्रॉम लाइफ, और गो टूवर्ड्स मुक्ति। तो योग कलाचार में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कुंभक का इस्तेमाल का मेंशन आज भी बाकी है, बट आयुर्वेद में वो बिल्कुल भी नहीं है। सो वी हैव लॉस्ट इट, सो इट हैज टू बी रिवाइव्ड, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, अगला क्वेश्चन। Sarita Gogia, ma'am, you can ask your question, please. Anybody else from the participants? Yeah, I pasted the question. Pardon me? You can ask the question, you can say it, है ना। अभी ढूंढना पड़ेगा, फिर आप बोल दीजिए। क्या कुंभक हेल्प करता है लूजिंग फैट?
हाँ, तो ये प्रोग्राम में ये मेंशन ही किया है, एंड वी आर सेइंग श्लेष्म शुद्धि, इट इज फैट लॉस प्रोग्राम। श्लेष्म शुद्धि, वो जो फैट है उसी को श्लेष्म भी कहते हैं, आयुर्वेद में इसको श्लेष्म कहा जाता है, उसी का ये एक फॉर्म है। तो क्या फैट लूज होगा? 100% फैट लूज होगा। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। Anjali ma'am writes about uterus removal surgery 8 days before. Can I still join? यस, यूट्रस रिमूवल सर्जरी। आजकल तो यूट्रस को वैल्यू ही नहीं देते, जहां से पैदा हुए हैं उसको वैल्यू ही नहीं देते। जैसे ही मेनोपॉज होगा कहते हैं यूट्रस निकाल दो। सो ऐसा ही है, जैसे कि यू नो, आई टेल यू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट नो, आपको मालूम होना चाहिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती है, मालूम है आपको? तो कैसे पता चलेगा वो भूखा है? सो ही हैज टू क्राई। वैसे ही एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एक्चुअली क्राइज फॉर वॉट एवर हार्मोन और न्यूट्रिशन इट नीड्स। अगर यूट्रस का, अगर हम एक फंक्शन हार्मोन के थ्रू देखें, तो हार्मोन फंक्शन के साथ में आपका यूट्रस अगर जुड़ा हुआ है, तो यूट्रस हैज टू क्राई फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ हार्मोन। तो आपने वो तो फैक्टर ही हटा देते हो तो हार्मोन डिविएशन हो जाता है बहुत ज्यादा। नाउ दिस इज नॉट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, द वे वी एलोपैथी के रिसर्च जो होते हैं ना, वो इस तरीके से होते नहीं है, और बहुत अच्छे रिसर्च भी नहीं होते, अभी बहुत होने चाहिए, है ना, उस एरिया में भी होना चाहिए। तो क्या यूट्रस अगर हमने हटा दिया, बिकॉज यू कांट अवॉइड दैट ना, डॉक्टर तो आपको जवाब नहीं देते ना, जैसे मैं बैठ के आपको जवाब दे जा रहा हूं, समझाए जा रहा हूं, डॉक्टर करता है क्या? नहीं करता, उसको तो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो जब आपका यूट्रस रिमूव कर दिया, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, डॉक्टर ने कहा निकाल दो, नहीं तो कैंसर, ये भी बोल देंगे कैंसर हो जाएगा। बस आप तो डर के मारे निकलवा दो, है ना, कि हॉस्पिटल का धंधा नहीं चल रहा तो दे नीड 100 ऑपरेशन एवरी वीक, तो उनको तो करना है। अब वो ऐसा भी सोचते हैं कि ये करने से नुकसान नहीं होगा, मगर मैंने बता दिया आपको क्या नुकसान होगा। सो जब महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी डिजाइन किया और उसके सारे एस्पेक्ट बताए थे, ही टोल्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ मर्म विज्ञान। मर्म विज्ञान। तो हिपोक्रेटस इंडिया आया, इतना तो बुद्धिमान नहीं होते ये फिरंगी, ये गोरे समझदार तो नहीं होते, मूर्ख प्रजाति हैं। तो जब आया तो सर्जरी, तो उसने सोचा कि सर्जरी तो उठा लिया, मगर मर्म का विज्ञान उसको समझ ही नहीं आया, इतनी बुद्धि नहीं थी। तो द होल सर्जरी इज डिवॉइड ऑफ मर्म नाउ। तो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मर्म, सर्जरी कैन एक्चुअली डिस्टॉर्ट एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ, ईदर इमीडिएटली और इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म तो कोई ऑब्जर्व करेगा नहीं ना। सारे हमारे बड़े बड़े नेता किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर आराम से ऊपर चले जाते हैं, पर कौन बताएगा कि वो ट्रांसप्लांट करने से जा रहे हैं ऊपर? या आपके शरीर में प्रॉब्लम सर्जरी की वजह से आई है जो बचपन में करवाया था, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सो वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड टुडे। तो मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल टर्म्स में कि जब आप सर्जरी कराते हो तो व्हाट यू लूज, दैट डिमांडिंग फैक्टर इन योर बॉडी that gets lost, then you will never be able to control your hormone function or other secretive function which uterus requires. फिर क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो ठीक करने के लिए, अपने आप नहीं होगा कभी भी ठीक। तो इफ योर यूट्रस इज रिमूव्ड, इफ यू हैव गॉन थ्रू सर्जरी, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन करो। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रिहैबिलिटेशन कह रहे हैं। रिहैबिलिटेशन करना ही सर्जरी के लिए जरूरी है करना हो, जिसको भी जो भी सर्जरी हुई हो, रिहैबिलिटेशन तो करना ही चाहिए ना, क्योंकि वो फंक्शन को अगर आप एम्पावर कर देंगे थोड़ा तो आपको नुकसान नहीं होगा। उसी हार्मोन की वजह से क्या हो जाता है? हार्मोन फंक्शन बिगड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है फीमेल्स में, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। केवल हड्डियां कमजोर नहीं होती, आप देखेंगे उनका पूरा साइकोलॉजिकल डिसरप्शन हो जाता है ना। दैट इज व्हाट यू फेस आफ्टर मेनोपॉज ऑल्सो ना। मेनोपॉज में भी हार्मोन फंक्शन आपका बंद हो गया तो व्हाट इज द डिसरप्शन? साइकोलॉजिकल डिसरप्शन विल हैपन, हार्मोनल डिसरप्शन इन द बॉडी, अदर हार्मोनल डिसरप्शन, मेटाबॉलिक डिसरप्शन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी। तो यू विल हैव टू एम्पावर योर बॉडी
टू नॉट हैव दोज थिंग्स, है ना, करना ही पड़ेगा आपको। तो अपने को अपना टॉलरेंस लेवल अगर जैसे ही बढ़ाते हैं, आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी डन। और इसीलिए इफ योर यूट्रस इज रिमूव, प्लीज डू इट। और Okay, any other question from the participants? Sir, this is Dhanashree Ojha from Pune. First of all, thanks a lot for like a very detailed explanation about कुंभक. Sir, मुझे ये सिर्फ पूछना है कि मतलब डाइट कितना टाइम के लिए हमें कुंभक करना पड़ता है, और डाइट में उसका क्या मतलब, जैसे अभी मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने 1 साल पहले ना कीटो किया था। दैट टाइम आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 kg। जैसे मैंने कीटो स्टॉप किया, वो वापस रीगेन हो गया। हाँ, वापस आ गया। और मतलब फिर ब्लोटिंग है, गैसेस है, ये सारे इश्यूज। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए, when you do keto, you're trying to control the body function by regulating your diet, isn't it? By changing your diet in a particular manner. आप फैट ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट को ड्रॉप कर दिया, इस तरीके से। ये एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं, तो हु इज दैट एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू यूटिलाइज वॉट एवर यू आर फीडिंग? कौन यूटिलाइज करेगा? योर बॉडी। यस। What is your body? The strength of your body which is utilizing. So I'll name few strength of your body. मैं 6 strength आपको बताता हूं जो कि आपके शरीर में ये कीटो अगर आप डालेंगे तो उसको इस्तेमाल करेगा। क्या है वो? देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। किसी ने वापस से माइंड की बात बता दो। मनोबल, ठीक है, द रिदमिक फोर्स। तो मनोबल, ओजस बल, ये बल है आपके शरीर में। जब आप फीड करेंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो आपने फीडिंग का तो फूड तो चेंज कर दिया, यूटिलाइजिंग स्ट्रेंथ को क्या कोई काम किया आपने? तो ऐसा है कि आप भोजन ही नहीं दे किसी को तो वो बेचारा क्या करेगा? इट डजंट हैव एन ऑप्शन। तो यू कैन क्रिएट अ सर्टेन रिजल्ट बाय changing the food, but that result is temporary associated with that control of food. कभी कभी ये कंट्रोल आपके बॉडी को नुकसान करेगा ना, क्योंकि स्ट्रेंथ को और वीक कर सकता है। हाँ या ना? अगर वो स्ट्रेंथ और वीक हो गया तो नुकसान हो जाएगा। कीटो डाइट से नुकसान होता है, हुआ है, सेलिब्रिटीज को भी नुकसान हुआ है। समझ में आया बात? तो अभी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि यू आर इंडियन। मगर आप सोचते हम इंडियन है, हमें समझ में नहीं आता कुछ। ऐसा नहीं है, इंडियन है तभी समझ में आता है। ये वेस्टर्न होते तो कोई बड़ा नाम बोल देते और किसी को कुछ नहीं मालूम और कुछ अंधेरे में तीर चला जा रहे हैं। अब आते हैं रियल बात पे, असली बात पे। कुंभक करने से काम कहां कर रहे हैं हम? We'll also suggest some diet, but that diet is not according to dietitian. गलत खाना देखना है ना तो आज के मॉडर्न शेफ और डाइटिशियन को देखो। अच्छा भोजन देखना है ना तो अपने पूर्वजों को देखो, है ना। डिजीज देखना है तो डॉक्टर को देखो। हेल्थ देखना है तो अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को देखो, कुंभक को देखो। तो अब आते हैं कि डाइट का हम और तरीके से डिफाइन और डिफरेंट तरीके से हम डाइट को डिफाइन करते हैं, वो भी सजेस्ट करेंगे। हम काम कहां कर रहे हैं? हम काम यहां कर रहे हैं। द बॉडी स्ट्रेंथ टू यूटिलाइज वॉट एवर यू फीड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये स्ट्रेंथ ठीक है तो पत्थर भी खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो जरा सा इधर उधर कुछ खा लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। काम कहां करना चाहिए? यहां पे करना चाहिए। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ समय कुंभक करने के बाद में आप कुछ भी खाओ, आपके बॉडी को नुकसान नहीं होगा, है ना। और वेट नहीं बढ़ेगा, वेट तो कम होगा ही कुंभक का 100% गारंटी, और दोबारा नहीं बढ़ने वाला। कितना टाइम करना चाहिए कुंभक को? आइडियली हम कहते हैं कम से कम 6 महीने करना चाहिए।
लेकिन एक बार आपने 6 महीने कर लिया ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी और फिर आप नहीं छोड़ने वाले। तो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट थ्रू आउट योर लाइफ, बट टेक्निकली बोल रहे हैं 6 महीने करना चाहिए। हाँ, और सर मुझे और एक पूछना था, ये इसके ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन कुछ ट्रेनिंग मिल सकता है क्या हमें? नहीं देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और Okay. ऑनलाइन की वजह से क्या है कि वी आर एबल टू रीच आउट टू यू। अगर Okay. मैं कहीं आश्रम में बैठ के अगर कर रहा होता तो जो लोग आते हैं उनको सिखाता। तो रीच आउट इज Okay. नॉट पॉसिबल। द होल वर्ल्ड नीड्स कुंभक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको, मैं तो और प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि आपको बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा। सो वी वांट टू रीच आउट फास्ट टू पीपल, हेल्प देम फास्टर। और इसमें कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू आर एबल टू लर्न, दैट यू आर एबल टू डू इट प्रॉपरली। क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें ऐड करते हैं वेयर यू कांट गो रॉन्ग। आप कर ही नहीं सकते, वैसे भी कुंभक से आप गलत कर ही नहीं सकते अपने शरीर में। आज तक अच्छा सर। कोई इंसान बताइए मुझे पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में जो सांस रोक के मर गया? हो नहीं सकता, बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट यू विल फेंट, योर बॉडी विल नॉट लेट यू डाई। बट फांसी लगा लोगे तब हो सकता है भाई, किसी और ने गला दबाया तब हो सकता है भाई, ठीक है ना? तो आप गलत कर ही नहीं सकते इसको। अच्छा सर, और नमस्ते गुरुजी। एक ही लास्ट सवाल सर, इंटरमीडिएट, इसके साथ में इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए क्या वेट लॉस के लिए? और फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए क्या? मुझे ये पूछना था, सॉरी ये देखो, लास्ट फिजिकल एक्टिविटी तो हमेशा अच्छा होता है, मगर अगर आप काम कर रहे हैं, घर के भी काम में एक्टिव हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो दैट इज एनफ फिजिकल एक्टिविटी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये टेक्निकली इसको और डिटेल में समझाया जा सकता है। तो अभी समझाना ठीक नहीं होगा ना, प्रोग्राम में आएंगे तो हम आपको समझाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है सर, ज्वाइन तो मैं करूंगी 100%। हाँ जी, स्वामी जी, कहना है आज का क्वेश्चन एनल इनकॉन्टिनेंस के लिए रचना जी, कहना है आज का क्वेश्चन। आप भी बोल दीजिए, आप भी एनल कॉन्टिनेंस का मैं बता देता हूँ, और अब आप जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन ये था कि मैंने आपका अविष्टा का दूसरा प्रोग्राम किया है, कस्टमाइज प्रोग्राम भी मिल गया है, मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैंने रिपोर्ट्स भी दिए हैं, वेरी हैप्पी विद इट। एंड अभी 1 आवर में मैं सारे मेरे कस्टमाइज कर लेती हूँ सुबह। तो बट मेरा वेट उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और मेरा वर्ल्ड टूर का सपना चालू हो गया है। आई फील मेरा वेट कम करना है। ये सबसे बड़ी बात है। So I want to be able to climb and do things. I have successfully done small climbs, but now I want to go to Kailash Mansarovar also. You will be able to go. Yeah, Swami ji, I want to ask you कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करने, मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग एनीबडी, कोई भी अगर डिफिकल्ट टेरेन में जाना चाहता है, अगर वो कुंभक करने लग जाए और 6 महीने तक कुंभक करे, तो किसी भी टेरेन में जाके उसको नुकसान नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको 6 महीना कंटिन्यू करना है अष्टांग चिकित्सा, तभी आप दूसरा प्रोग्राम करें। तो अभी कस्टमाइजेशन मिला हुआ है, जस्ट डू इट, कीप डूइंग इट फॉर 6 मंथ एंड देन यू कैन ज्वाइन अदर प्रोग्राम। हमें ये श्लेष्म शुद्धि भी आप फिर बाद में कीजिए। हाँ, अच्छा, ओके। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए। ये जैसे कुंभक है, इस तरह से कपालभाति इफेक्टिव नहीं है? कपालभाति बेसिकली कपालभाति के कई फॉर्म्स होते हैं, उसमें बेसिक कपालभाति आजकल बहुत सिखाया जा रहा है काफी जगह पे। कपालभाति के साथ में इशू ये होता है कि कपालभाति एक तरीके से एम्पलीफायर है। जैसे आपको कपालभाति की जगह मैं और भी चीजें बता देता हूँ जो कपालभाति की तरह एक्ट करेंगे। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो होता है ना, वो भी कपालभाति की तरह एक्ट करेगा, वो भी आपके शरीर में किसी चीज को एम्पलीफाई करेगा। तो जब भी एक्टिविटी फास्ट होती है ना, जब एक्टिविटी फास्ट होती है, ब्रेथ की एक्टिविटी या बॉडी की एक्टिविटी फास्ट होती है, तो वो एक तरीके से कपालभाति जैसा एम्पलीफायर का काम करता है ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं और उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके बॉडी में एक डिजीज है तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ है, आपके बॉडी में हेल्थ है, तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पॉजिटिव एम्पलीफाई हो जाएगा, नेगेटिव एम्पलीफाई हो जाएगा। तो उसके पहले क्या करना है?
तो हम अष्टांग चिकित्सा में ये चीज बहुत पहले से करवाते हैं। हम कहते हैं कि कपालभाति जब आप अभी कर रहे हैं ना, बिकॉज इट इज फोर्स्ड एक्सेलेशन एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एक्सेलेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके देता हूं, यू कैन ट्राई इट अपॉन योरसेल्फ। अपने ऊपर जरा ट्राई करके देखिए तो पता चलेगा क्या आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ अच्छा है। कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप 5 यूनिट का इनहेलेशन करते हो, 5 यूनिट 5 सेकंड का, आप मान लीजिए 5 सेकंड का इनहेलेशन करते हैं, तो 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स मोर, ये 20 सेकंड को रोक लीजिए उसको, और उसके बाद 10 सेकंड का एक्सेलेशन करो, 10 सेकंड का एक्सेलेशन करो। इफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही 10 सेकंड का एक्सेलेशन करने में, तो आपकी ऑर्गन स्ट्रेंथ अच्छी है। नाउ यहां पे जितने लोग हैं, आई एम सेइंग 5 सेकंड से शुरुआत किया ना, सम में हैव मोर कैपेसिटी, 10 सेकंड भी हो सकता है किसी का, तो 10 का 4 टाइम्स एंड देन ट्वाइस, उस तरीके से चेक करो। कोई भी नहीं कर पाएगा यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपके एक्सेलेशन पे आपको कंट्रोल लेके आना है। वंस यू गेट कंट्रोल ओवर योर एक्सेलेशन एंड यू गेन हेल्थ फैक्टर्स इन योर बॉडी, देन यू कैन गो फॉर डूइंग कपालभाति। सो कपालभाति जो है ना, वो थेरेपी नहीं है, उसको थेरेपी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको थेरेपी बनाने की कोशिश की जा रही है ऑन सटल लेवल्स। देयर आर पीपल, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं, बिकॉज ऑफ दैट पीपल जिनको डायबिटीज था, उनका शुगर लेवल बहुत कम होके, हाइपोग्लाइसीमिया अटैक होके दे डाइड। क्योंकि कंट्रोल पहले जरूरी है आपको। शुगर लेवल तो वैसे ही चूस के निकाल सकते हैं आपके बॉडी में से, क्या वो ट्रीटमेंट होगा? इट विल नॉट बी ट्रीटमेंट। दवाई खा रहे हैं ना, डायबिटीज तो ठीक नहीं हो रही। तो ये चीज जो है ना, ये अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज टू डीप इनटू दीज थिंग्स, उसका सटल एस्पेक्ट बहुत ओपन है, वो देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? किसी भी चीज को उठा के उसको ट्रीटमेंट थेरेपी बनाने की कोशिश करेंगे, एंड वी कैन डू हार्म ऑन लेवल्स विच वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। इसके जरिए आप ऐसे ऐसे दोष क्रिएट कर सकते हैं विच विल नॉट अफेक्ट यू नाउ, विच माइट अफेक्ट यू 20, 25, 40, 50 नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो ये इतना आसानी से जस्ट टू प्रमोट समथिंग, हमने पैकेज करके उसको बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अनदर थिंग। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए तो अच्छा है, आई विल अप्रिशिएट कि अगर को, लेकिन इससे नुकसान हो सकता है, वो कैसे हम हैंडल करेंगे? तो ये नुकसान भी कर देता है कभी कभी। तो क्या कपालभाति करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? देखो, कपालभाति यूजुअली हम लोग कभी कभी अपने आप ही जनरली कर लेते हैं, जब भी आपके शरीर के अंदर कुछ होता है, जैसे लंग्स में अगर शरीर निकालना चाहता है तो खांसी क्रिएट करता है ना, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कपालभाति। वो शरीर कर ही लेता है जब उसको जरूरत होती है। बट कॉन्शियसली लोग आजकल एक ऐसे लोग हैं जो 1-1 घंटा कपालभाति करते हैं और उनका माइंड बिल्कुल बिगड़ चुका है, और उनको बोल दो कि आप कपालभाति रोक दो तो वो रोकेंगे नहीं। आई हैव एनकाउंटर्ड दोस पीपल। और ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने बोल दिया कि आप ये छोड़ दीजिए, लेट्स गो टूवर्ड्स समथिंग विच वेयर यू कंट्रोल दीज फैक्टर्स एंड देन यू कैन टेक इट। वो छोड़ते ही ठीक भी हो गए। तो इट्स ट्रिकी, किसी भी चीज को हम थेरेपी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे ना तो कस्टमाइजेशन होता है, वो आपको चेक करेंगे कि आप में क्या प्रॉब्लम है, वो जेनेरिक नहीं बोलते। मगर अभी तो आयुर्वेद भी एलोपैथी के साथ कंपटीशन कर रहा है ना। अब क्या करें? अब बुद्धि सबकी कम है तो फिर क्या करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी कस्टमाइज। आयुर्वेदिक कॉलेज में एलोपैथी जैसी पढ़ाई करवा रहे हैं, कम ऑन। आयुष के बाबू लोग जो हैं हार्वर्ड की ओर देख रहे हैं, दे डोंट हैव अ क्लू ऑफ व्हाट इज आयुर्वेद। मगर क्योंकि उसने टाई लगाया हुआ तो हमको लगता है कि ये समझदार बंदा है, तो टाई लगा के तो दुनिया बर्बाद कर दी उन्होंने। आपको भी करना है तो कर दीजिए, ऐसे कोई थोड़ी होता है। ये सब सोच से निकलना पड़ेगा हमको। हाँ, जेंटली अगर आप कपालभाति भी करेंगे, जेंटली करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से ही नुकसान होगा, है ना। ये भी चीज है। मगर आप समझिए आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। क्लियरली देखिए, आपको हेल्थ चाहिए, आप बीमारी से निकलना चाहते हैं तो गो टुवर्ड्स दैट, उस तरफ में कीजिए। नहीं, हमें तो हेल्थ के लिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वेदर इट इज गुड और नॉट। कि अभी आपने बताया कि कुंभक ही स्टार्टिंग पॉइंट है तो आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, उसके बाद में वंस यू हैव अ कंट्रोल ओवर द थिंग्स ना, देन यू कैन टेक अ लिटिल लेवरेज, थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं, थोड़ा जोर जबरदस्ती भी कर दिया तो नुकसान नहीं होगा। हमारे कुंभक के प्रोग्राम में लोगों को कुंभक करने के बाद में हार्ट अटैक आता है ना, तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, उनको पता नहीं चलता हार्ट अटैक आ गया। एक मानो ऐसे मैं लोग बता सकता हूं जिनको 6-6, 7-7 हार्ट अटैक आए, कुंभक करने के कारण उनको कहीं नहीं जाना पड़ा। एक बार वो गलती से डॉक्टर के पास में चले गए, ईसीजी देख के बोलता है डॉक्टर यार तुमको तो हार्ट अटैक आया हुआ है। कहता है नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा अपना टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, दवाई खा के हार्ट अटैक बचाना चाहते हैं, 2-3 कहते हैं ना, 3 में चला जाता है, नहीं आजकल 2 में जा रहे हैं, 1 में भी जा रहे हैं, तो हम और कमजोर कर रहे हैं अपने आप को। तो टॉलरेंस बढ़ा देंगे ना, देन यू कैन टेक अ लिटिल लेवरेज। शरीर के साथ में कुछ भी करो, नुकसान नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूं ना, पत्थर खाओगे तो भी नुकसान नहीं होगा, नहीं तो मक्खन खाओगे तो भी नुकसान होगा। Swamiji, very important question. Yes, I want to ask an important question. As you said that inflammation is a protective phenomena, like fat in the liver, then cholesterol in the blood. So, fat in the liver is not inflammation. Okay. Fat is protective for inflammation. Protective. Okay, protective for inflammation, and then cholesterol is also similarly protective phenomena. So, what then if a patient has high cholesterol and he is going into like a blockage of the arteries and maybe he has some minor heart attack, so immediately we should give him medicines or not, or should we starting say kumbhik history okay, I got where you want to but go. I have second question also. Second question also I ask in the line so that you answer both. So I am already into a program of your beginner Kumbhak program and I am there for last 2 months. So I have received many benefits, but for weight loss I need to join the separate course, or this course will also help. Okay, पहली बात, please see the tricky situation. When I say, देखो जब भी आप केमिकल डालते हो, I एक्सप्लेन दिस कि आप शरीर पे खरोंच लीजिए तो जलन होता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन. सो इफ यू पुट केमिकल्स ऑन योर स्किन, इरिटेशन होगा, जो ज्वलनशीलता होगी, दैट इज इन्फ्लेमेशन. सो व्हेन यू पुट मेडिसिन इन योर बॉडी और रॉन्ग फूड इन योर बॉडी, द बॉडी गेट्स इनटू इन्फ्लेमेटरी स्टेट. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट इट? व्हाट डज बॉडी डू टू प्रोटेक्ट इट? तो बॉडी क्या करेगा उसको प्रोटेक्ट? आप क्या करेंगे? थोड़ा सा घी लगा लो तो कम हो जाएगा इन्फ्लेमेशन. तो बॉडी भी तो लगाएगा ना. तो वही लीवर जो है वो थोड़ा घी लगा रहा है ना, फैट क्रिएट कर रहा है. आप कहते हैं फैटी लीवर हो गया. आपका बॉडी बनाना चाहता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल से इन्फ्लेमेशन कम होता है. तो कॉर्टिसोल कैसे बनाएगा? वो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, वो रॉ मटेरियल है कॉर्टिसोल बनाने का. तो आपके बॉडी को ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना ही चाहिए ना. मगर आप कहते हैं नहीं, उससे तो आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. ब्लॉक से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता. क्या आपको मालूम है इस बात का? बिकॉज यू आर रीडिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग एन आइडिया. ब्लॉक से हार्ट अटैक नहीं होता. पहली बात. डू यू नो एंजियोप्लास्टी इज अनसाइंटिफिक? कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपने आप ही कोलेटरल खोल देगा अगर आप नहीं करवाएंगे तो. हार्ट अटैक किस वजह से होता है? अटैक होता है जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है. मुझे बताइए 95% ब्लॉक, क्या 1 महीना पहले 95% नहीं था? 95 आने में तो बहुत टाइम, साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं. क्या 1 महीना पहले 95 नहीं था ब्लॉक? तो ब्लॉक से अगर आना था तो 1 महीना पहले जो 95 हुआ था उस समय अटैक आना चाहिए था ना, पर नहीं आया. क्या 92 में अटैक नहीं आएगा? 94 में नहीं आएगा? क्या आपके बॉडी ने जब पैदा हुए थे तो एक यूजर्स मैनुअल देके भेजा था कि भाई इतने में हार्ट अटैक आएगा? आया था? जब पैदा हुए थे तो यूजर्स मैनुअल आया था क्या आपके बॉडी का? आप तो आइडिया लगा रहे हो ना कि इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए. कुछ भी आइडिया लगा रहे है ना, कुछ भी आइडिया लगा रहे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए. अब आपने सब पढ़ लिया. वही मैं कह रहा हूं, आप लोग समझदार हो, मगर आप लोग पढ़ लिख गए तो प्रॉब्लम है. तो आपके दिमाग में आपने क्या आइडिया क्रिएट किया? 120/80 सही होना चाहिए, मगर ये है नहीं सही. क्या फॉर्मूला होना चाहिए? योर एज प्लस 100 प्लस माइनस 10. तो सपोज करो आप 40 साल के हैं, तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 150/95 का नॉर्मल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
मगर 150 तो आप जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर 150 में नॉर्मल फील करेंगे तो आपका डॉक्टर कमाई कैसे करेगा? तो दवाई देके ही कमाई करेगा ना। तो आप स्टैंडर्ड को कम कर दीजिए। मालूम है आपको, कभी 180 स्टैंडर्ड हुआ करता था, 180 बाय 100। क्या आपको मालूम है महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर क्या था? 220/110 पूरी लाइफ टाइम रहा। उनको तो हार्ट अटैक नहीं आया कोई। तो हम बॉडी के टॉलरेंस का तो नजरअंदाज कर रहे हैं। देखो, जिन लोगों का कम टॉलरेंस है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों का टॉलरेंस ज्यादा है वो 250-300 में भी कुछ नहीं होगा आपको। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, नंबर से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। अब दूसरी बात, अब और बात आ जाती है कि क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपोजिशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। लेकिन क्योंकि हो सकता है किसी में, तो वी आर ट्रीटिंग इट एज कि चलो इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लॉकेजेस होगा ही होगा, सो लेट्स गो टुवर्ड्स पुटिंग इन स्टैटिन, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। मगर ये बहुत फेटल चीज है। स्टैटिन अगर आप खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बिगड़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हाई होने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, मगर आपको लो करके नुकसान 100% गारंटी है। डेटा बता रहा हूं 25 आउट ऑफ 100 डायबिटीज केसेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ टेकिंग स्टैटिन्स। तो आपने कोलेस्ट्रॉल कम करके बीमारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और अगर आपका बॉडी में, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया था, अगर थोड़ा सा कुछ हफ्ते तक उस दर्द को थोड़ा झेल जाते तो एक नया कोलेट्रल बन जाता ना वहां पे। आप स्कैन करके देखो, ये सब बातें आप जरा गूगल में जाके देखिए कि आजकल ये बातें आ रही है कि एंजियोप्लास्टी तो करना ही नहीं चाहिए बिकॉज हार्ट कैन हैंडल। बट प्रॉब्लम एक और है जिसकी तरफ में मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाय कॉन्टिन्यूअस पुटिंग इन केमिकल्स इन द बॉडी, by changing the environment and changing the food, we have brought down the tolerance level of this body. अपने दादा दादी याद है कितना काम कर पाते थे? जरा सी छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। हमको तो जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो टॉलरेंस लेवल आपने कम कर दिया, अब उसमें आप और कम करेंगे। हो सकता है 5 साल बाद में कहें कि ब्लड प्रेशर जो है ना 120/80 नहीं 115/78 नॉर्मल है। पता है 5 या 10 यूनिट नंबर को इधर उधर करके आप कितनी दवाई बेच सकते हैं? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाई बेच सकते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या जो आपने आइडिया लगाया क्या वो सही आइडिया है? क्या ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आता है? ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं आता, क्लॉट फॉर्मेशन से आता है। क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए होता है। रिस्क बढ़ा देंगे तो हार्ट अटैक आएगा। तो गोली डाल के रिस्क बढ़ा रहे हैं, गलत फूड डाल के रिस्क बढ़ा रहे हैं, मगर रिस्क आप कितना कम कर लेंगे बाहर से, अंदर से टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसीलिए कह रहा हूं ये जरूरी है, ये सबके लिए अर्जेंसी में जरूरी है। अदरवाइज यू कांट प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। यू आर जस्ट क्रिएटिंग आइडिया। हम तो रिस्क कम कर रहे हैं जी, ये खिला के, स्टैटिन खिला के रिस्क कम कर। मुझे डेटा बताओ ना, कहां रिस्क कम कर रहे हैं, किसको कहां पे किया कम? क्या आपने उसके साथ में कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर रिसर्च किया जहां पे आप बिना दवाई दिए लोगों को का रिस्क कम कर रहे हैं और दवाई देके रिस्क कम कर? जब भी आप ये दोनों चीज ले आएंगे ना तो आपको पता चलेगा दवाई देके रिस्क बढ़ा रहे हैं, बिना दवाई देके हम रिस्क कम कर सकते हैं। एंड द मोस्ट पोटेंट वे इज बाय इंप्रूविंग द टॉलरेंस लेवल एंड अदर फंक्शनैलिटी। वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या ये प्रोग्राम करना चाहिए? देखिए वो जो जेनरिक है ना, जो जेनरिक हमने दिया है, क्या उससे वेट कम होगा? हाँ उससे कम होगा, बट वो थोड़ा लेट काम करेगा क्योंकि वो जेनरिक दिया, क्योंकि वो हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बंदा कुछ ज्यादा इधर उधर करके अपने आप को मतलब किसी और स्टेट में जाए। तो जेनरिक जो है ना बहुत जेनरिक है, ये कस्टमाइज है। तो अगर आई वांटेड टू आस्क कि क्या हम दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या हाँ दोनों कर सकते हैं।
जो कैसे करना है वो हम आपको प्रोग्राम में बता देंगे। ठीक है, thank you so much. So we'll end this sir, webinar. one more question. Uh-huh. Will it improve digestion and reduce 100%, bloating, etc.? 100%, 100%. The moment you start, you'll see improvement in digestion, metabolism, bloating वगैरह के लिए और भी चीजें बता देंगे, बिकॉज हम केमिकल खा के ना गट माइक्रोबायोटा को भी खत्म कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे पेट में, उसको मार देते हैं ना, असली डाइजेशन तो वो करते हैं। सो व्हाट, हाउ यू कैन रिकवर दैट, ये सब हम बता देंगे प्रोग्राम में। ठीक है, सो विल एंड दिस वेबिनार हियर। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी लाइफ में खूब सारा हेल्थ हो, खूब सारी खुशियां हो, ऐसी शुभकामना है। Thank you so much to all the lovely participants for joining us for the Ameda webinar. Stay healthy. Good night. Signing off, Rachna Bothra.